सो गाइस, शेयर द लिंक विद योर फ्रेंड्स एज वेल, ताकि सब जल्दी से ज्वाइन कर लेते हैं सेशन को। फिर हम स्टार्ट करेंगे अपनी स्ट्रेटजी के साथ, जो भी हमने लास्ट यूनिट में फॉलो करनी है। आपने कैसे आगे जो आपके फॉर्मूलेज एंड कॉन्सेप्ट्स उन कैसे रिवाइज करना है, ऑल दिस वी विल बी डिस्कसिंग इन टुडेज सेशन। सो इनवाइट योर फ्रेंड्स एज वेल फॉर द क्लास, ओके। So before starting with the session, let me introduce myself. My name is Shubham Sharma. I have done my mechanical engineering from Chandigarh Engineering College, Mohali, and I have cleared FCAT, CDS, and INET, all the exams in first attempts. So I think uh, using my strategy, that will definitely help you to score better in your exam. Okay, so what is the main thing that why I want to make this strategy session? Because many of you are giving this exam first time, and there are speculations that how you need to cover all these traumas when you are preparing for the exam. So guys, being myself cleared the exam in first time, I think I can answer all your questions, because at the same time I was also in the same position when I was giving the exam for the first time. But after clearing FCAT, CDS and INET, it has certainly given me and boosted up my confidence that you can easily clear all the exams in first attempts if you follow proper strategy regarding yourself. Okay, to add to my introduction, currently I am a star educator at Unacademy, taking classes on FCAT, CDS and CAPF category in Unacademy. I have taken classes for FCAT particularly from June 2020, and I am regular with the classes at Unacademy platform. If any one of you might be failing to start with the crash courses and the mock test analysis or classes, you can follow me on Unacademy. I will provide my description link in the description box below after the session is over, okay. So I think many of you have joined the session already. So guys, let's start with it, okay. और कुछ ने अगर आपने मतलब लिंक वगैरह शेयर किया हो और अगर आपको कोई फ्रेंड ज्वाइन कर रहा है, सो it's been the case that we can wait for 1 minute more, okay. So guys, is my voice clear to all now? Is my voice clear to all? Okay. So guys, these are the important points which will I be covering, which I will be covering in today's session. So major key points will be understanding the exam pattern. देखो एग्जाम पैटर्न तो सभी को पता है कि एफकेट में कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्या आपका टाइम लिमिट रहने वाला है सेक्शन वाइज, बट स्टिल देयर नीड टू बी अ गुड होल्ड एंड पॉइंट ऑफ व्यू व्हेन यू आर रिक्वायरिंग द एग्जाम पैटर्न इन अ डिफरेंट वे। और डिफरेंट वे कैसे रहेगा आज उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। Second thing is, major thing is how to clear the cutoffs and what are the current positions or scenario which can help you deal with the cutoffs, ठीक है। एक चीज़ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट तो आई थिंक कट ऑफ्स ही है, बिकॉज अगर ये क्लियर नहीं होगा देन यू विल नॉट बी रिसीविंग एनी मेल फ्रॉम द AFSBs, ठीक है। नेक्स्ट इज टाइम मैनेजमेंट. Time management is very important because it's a computer based test and you need to attend the whole test in 2 hours. So proper time management is required while attempting the test, ठीक है। Next thing will be, what will the next thing?
Next thing will be tips to follow. What are my guidance and tips for you guys so that you can follow them in your exam while attempting the FK 2020 paper, which will definitely help you gain the confidence and clear your cutoffs easily. Okay. Next thing will be conclusion. Conclusion will deal with the major aspects of all this of whole session which we have covered in today's date, and this will definitely help you gain some confidence when you will be assigning and doing the mock test. ठीक है. So guys, let's start with the exam pattern. एग्ज़ाम पैटर्न देखो सभी को पता है कि एफ कैट के एग्ज़ाम के अंदर आपके दो एग्ज़ाम्स होते हैं. फर्स्ट इज़ फॉर द नॉन टेक्निकल एंड सेकंड इज़ फॉर ग्राउंड ड्यूटी एंड टेक्निकल ब्रांच ओनली. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस विद द एफ कैट. ठीक है. एफ कैट जो आपका प्रॉपर 2 आवर्स का एग्ज़ाम होने वाला है. ठीक है. इट इज़ अ 2 आवर्स एग्जाम एंड 100 क्वेश्चन आएंगे इसमें, जिसमें कि 1 क्वेश्चन इज ऑफ 3 मार्क्स एंड नेगेटिव मार्किंग इज ऑफ -1 मार्क्स. ठीक है. सो फर्स्ट थिंग इज कि हाउ यू नीड टू गो विद द माइंडसेट कि मैंने जो है 100 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, कितने क्वेश्चंस मैंने नहीं करने हैं, या फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैंने लास्ट में अटैम्प्ट करने हैं. सो उसके ऊपर बिल्कुल डिटेल में बात करते हैं आज. ठीक है. देखो, और इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने ये करना है कि देखो आप सबको पता है कि सिलेबस में आना क्या है. सिलेबस में जनरल अवेयरनेस आनी है, verbal ability in English, numerical ability and reasoning in military aptitude. So what are the main important parts? For some of you, general awareness is important. For some, reasoning is easy and important as well. And for some of you, numerical ability is much more harder. So how you need to analyze your weaknesses and strengths so that you can easily clear with the cutoffs. So guys, अभी आपने देखो करना क्या है. अभी यहाँ से आपके पास 4 सब्जेक्ट्स हैं आपके पास, और आप सभी ने देखो मॉक टेस्ट दिए हुए हैं. ठीक है. इफ़ यू हैव गिवन द मॉक टेस्ट, और उसमें अगर किसी भी 2 सब्जेक्ट्स के अंदर आपका ज़्यादा फोकस है, सपोज कि आपका फोकस रहा है रीजनिंग के ऊपर और जीके के ऊपर, एंड यू आर इजीली एबल टू go to at least 130 marks in these 2 sections, then it's a pretty good chance of clearing the cutoff. Because 10 questions, अगर आप 10 questions और कर लेते हो इंग्लिश प्लस मैथ्स में से, तो आप इजीली 160 के प्लस जा सकते हो. ठीक है. अब ये मैंने 10 क्वेश्चंस किसके लिए बोले हैं? द स्टूडेंट्स हु फील दैट कि मेरा न्यूमेरिकल एबिलिटी सेक्शन जो है काफ़ी वीक है. ठीक है. सो ये आपकी पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है. ठीक है. मैं सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा आने वाले इसमें वीडियो में. ठीक है. नाउ नेक्स्ट थिंग इज EKT. EKT इज इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट. इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट इज फॉर द कैंडिडेट्स हु हैव फाइल्ड फॉर द ग्राउंड टेक्निकल ड्यूटी. ठीक है. इसमें मेनली इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स के आपकी जो एक्सेसिबिलिटी होती है. फर्स्ट इज ब्रांचेस क्या रहेंगी इसमें? मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स. So what is the scenario for the students who have not done BTech in these 3 streams? Suppose some of you might be doing the BTech in chemical engineering or might be in textile engineering. So for you, you need to choose at least one subject like mechanical, because in certain engineering branches like your civil engineering or your mechanical or your textile chemical, in this certainly subjects are more of the same. So certain subjects are same, and another thing is that EKT test is not of the gate level. गेट लेवल का एग्ज़ाम नहीं होता है ये. ठीक है. तो जिसको अगर थोड़ा बहुत भी टेंशन है कि गेट लेवल का पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है. जस्ट बेसिक थ्योरी नॉलेज ऑफ योर फर्स्ट 3 to 4 सेमेस्टर्स सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग साइंस और फिजिक्स और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स M1, M2 और M3.
just basic knowledge of these subjects will definitely give you a hold in this exam. ठीक है. So in this exam what is the main scenario, 50 questions come and maximum marks are 150. ठीक है. So अभी इन दोनों के बारे में कट ऑफ तो देखो, आपको जब आपने प्रैक्टिस किया, यू हैव गिवन द मॉक टेस्ट ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, तो वहाँ पर आपको एक मॉक टेस्ट का जो जो बेसिक आपको कट ऑफ बताई होगी कि दैट माइट बी अराउंड 140 अराउंड इन FCAT 1, जो कि आपका टट एग्जाम है, इसमें 140 कट ऑफ रहा होगा. एंड इसके अंदर जो EKT है, इसके अंदर एटलीस्ट 45. इफ़ आई टॉक अबाउट 2020 फर्स्ट विंडो, 2020 के अंदर EKT का कट ऑफ था ओनली 40. So you can see how downgraded was the level. So if cutoff was so much low, then you can think of yourself कि how much difficult was the exam was. मैं डरा नहीं रहा हूँ, but एक proper image बता रहा हूँ आपको कि how you need to be presenting yourself and preparing yourself while giving the exam. ठीक है. Now I hope कि आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में कुछ जो आपको पहले पता था उससे थोड़ी ज़्यादा नॉलेज अब हुई होगी कि how you need to cover different subjects in this last 1 week. Now if you see the next point क्या है, this is the most important, what the cutoffs say or the hurdle of cutoffs. So when we have not started with the FCAT exam, it seemed impossible. ठीक है. This image certainly defines your capability कि when you started for your FCAT preparation, it seemed impossible, or for some of you it might seem कि मैंने लास्ट ईयर मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ था, क्या पता इस बार भी ना हो. ठीक है. ये सब स्पेकुलेशंस आप सबके अंदर आती हैं, बट वट यू नीड टू डू नाउ, यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन द कट ऑफ्स कि उस हिसाब से आपने टारगेट करने हैं अपने मार्क्स, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो कैसी बने. सी द फर्स्ट थिंग इज you just need to attempt at least 50% of the exam and then you are par with the cutoff. Now यहाँ पर एक terms and conditions क्या है, एक terms and condition is when you have 100% accuracy. When you are 100% accurate, then you are easily be clearing on the positive side and clearing your cutoff. Now how does it happen? Why just 50%? Because if you see देखो total जो exam है आपका, उसमें 100 questions आने वाले हैं. ठीक है. 100 questions means 300 marks. These are questions and these are marks. Now see this, when you will be attempting at least 50%, at least 50% का मतलब 50 questions minimum, so you will be at least gaining 150 marks. ठीक है. So this is the main thing which you are focusing on the exam. ठीक है. Now the main and the next thing is I don't want you to score only 150 or 160. I am just presenting you a little bit image, or at least image, that how you need to be targeting around your final exam. ठीक है. Now marks around 160 plus will definitely give you the mail from Indian Air Force for your Air Force selection board. ठीक है. And this is the main thing for which we all are waiting कि जल्दी से एग्ज़ाम हो, अपने स्कोर्स अच्छे आएँ, एटलीस्ट 180 प्लस स्कोर आ जाए, so that I will be attending a SSB at AFSB centers. So this is the only main motive why we are giving the exam. ठीक है. So देखो अब आपने करना क्या है, अभी आपने मॉक टेस्ट दिए हैं. ठीक है. आपका स्कोर्स भी आए हैं, स्कोर्स किसी के 90 आए हैं, किसी के 150 आए हैं, किसी के 180 भी आए हैं, और जिसके 200 प्लस आ रहे हैं, ही और शी इज इन द कंफर्टेबल जोन. ठीक है. उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ही इज़ ऑलरेडी सेट विद हिज माइंड सेट कि मैंने जो है अटैम्प्ट अपना पेपर ऐसे करना है. ठीक है. सो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट द स्टूडेंट्स हु आर रेंजिंग इन द रेंज, हु आर गेटिंग मार्क्स इन द रेंज ऑफ, यू कैन से 120 to 170, उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है. बिकॉज देखो इतना जो आपका मार्क्स रेंज रहता है 120 से 170 का, इट इज़ ऑलवेज अप्रॉक्स. द मेन पॉइंट इज दैट यू ऑलवेज अटेम्प्ट ओनली 50, you are being on the safer side and attempting at least 55 questions. 55 से 56 questions आप attempt करते हो, और जब इस मार्क्स रेंज में पहुंचते हो, और फिर आपकी नेगेटिव मार्किंग भी हो जाती है, so you lie on the lower side which is 120. ठीक है. So what you need to do now, you need to just look at the next information which I am going to provide for you, and which will certainly help you to get that positive confidence, and that confidence is very much necessary in this last 1 week. Because if you are positive for your exam, and if you are focused
totally on this exam will definitely help you to gain the confidence to the students who are working as well as and the students who are in the final year of their colleges, so that what they need to do in certain speculations about your cutoffs of the exam. So let's see it. This represents the cutoff scores for the 2 hours exam. ये है 2 hours एग्जाम जो आपका मेन एग्जाम है, एंड दिस इज फॉर द EKT जो टेक्निकल ग्राउंड ड्यूटी के एग्जाम देने वाले हैं. दिस इज द कट ऑफ फॉर दोज. ठीक है. सो नाउ से दिस, इफ आई टॉक अबाउट FPEC 2019, इस डाटा के अंदर मैंने 2020 का मिस किया हुआ है. लेट मी मेंशन दैट 2020 के अंदर जो आपकी कट ऑफ थी इट वाज 152. ठीक है, फॉर 300 मार्क्स पेपर, एंड फॉर EKT it was only 40. Now see this, in the last two attempts you can see 142 in 2019 second window, and in 2020 second window, first window it was 152. There was no much difference, and range was approximately 140 to 160 cutoffs. You can say for the 300 जो 300 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है उसका कट ऑफ जो है वो इस रेंज में. यू कैन योरसेल्फ सी कि 2019 के अंदर कितना कम कट ऑफ था, 133. सो व्हाट डज इट रिप्रेजेंट्स? इट रिप्रेजेंट्स कि जो एग्ज़ाम का लेवल था इट वाज सर्टेनली हाई ऑन अ डिफ़िकल्ट साइड. देखो अगर डिफ़िकल्ट साइड पे था, बट स्टिल यहाँ पर मैं आपको क्या सजेस्ट करूँगा, अगर देखो एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट है तो सिर्फ आपके अकेले के लिए नहीं है. ठीक है, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर ऑल. ठीक है, सो यू नीड टू बी अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस इन विच यू आर प्रेटी मच श्योर कि मेरा यही आंसर होने वाला है. ठीक है, तो ये चीज़ आपको अपने अंदर मतलब सेट करनी पड़ेगी सो दैट यू कैन ईजिली क्लियर द कट ऑफ्स. एंड ऑन द साइड बाई साइड यू कैन सी द कट ऑफ मार्क्स फॉर EKT. EKT के लिए आज तक के मिनिमम मार्क्स जो कट ऑफ के लिए आए हैं वो आए हैं 2020 के फर्स्ट साइकिल में, जो कि थे 40 मार्क्स, और मैक्सिमम मार्क्स कहाँ तक गए हैं? 60. सो व्हाट रेंज यू नीड टू बी टारगेटिंग? You need to target at least of 60 marks. तो 60 मार्क्स के लिए आपने क्या करना पड़ेगा? 50 क्वेश्चंस आते हैं, सो यू नीड टू अटेम्प्ट एटलीस्ट 35 क्वेश्चंस करेक्ट विद 85 to 90% एक्यूरेसी. ठीक है, दिस शुड बी अ प्री रिक्वेस्ट रिक्वायरमेंट सो डैट यू कैन ईजिली क्लियर द बोथ द एग्जाम्स. ठीक है, दिस वॉज ओनली फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव अप्लाइड फॉर बोथ. ठीक है, जिसका FPET का भी एग्जाम है और जिसका EKT का भी एग्जाम है, तो ये दोनों के लिए स्ट्रेटजी है. ठीक है, एंड द स्टूडेंट्स आर फोकस्ड ऑन दिस वन एग्जाम ओनली कि मेरा बस फर्स्ट एग्जाम क्लियर हो जाए. ठीक है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स वही होते हैं जिनका सिर्फ एक ही एग्जाम होता है, बिकॉज जो EKT लेवल है डेट इज ओनली फॉर इंजीनियर्स. ठीक है, ना इफ़ यू सी दिस द कट ऑफ्स रेंज यू कैन योरसेल्फ सी कि हर एग्जाम के अंदर आपको 160 से ज़्यादा कभी भी स्कोर नहीं करना पड़ रहा है टू ईजिली क्लियर द कट ऑफ. बट आई सजेस्ट यू कि you should target at least 180 marks. 180 marks means at least 60 attempts. This is my suggestion to you all. ठीक है, I hope this is might clear the picture about the cutoff and where are you standing as of now. Is it clear to all how you need to be attending the how you need to be focused on your exam point of view, so that you need to target at least 60 attempts in your final exam. कट ऑफ से क्लियर हुआ होगा अभी तक सभी को. ठीक है, और देखो कट ऑफ अगर हमें पता लग जाता है कि हमें मिनिमम इतने मार्क्स स्कोर करने हैं, सो उससे अच्छी चीज़ कोई है ही नहीं, उससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता है. बिकॉज व्हेन यू आर सीइंग योर टारगेट और आपने टारगेट सेट कर लिया है कि मैंने एटलीस्ट वहाँ तक तो जाना ही है, then with all the efforts, with all the patience and persistence, you are easily and you will be easily be achieving that target. Okay, now let's move forward to the next thing. This is the main thing for your exam. Any exam which has started with your computer based test, उसमें main क्या होता है? Time management. Now this picture certainly depicts the story of all the students who attempt these online exams. It says when you spend 20 minutes on a multiple choice question on a test, but none of the answer matches yours, and it happens frequently. It happens frequently, guys, कि जब आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो, आपको जैसे सपोज थोड़ा एग्जांपल है
कि when you have prepared for mathematics so hard and with so full of dedication कि आपको ऐसा लगता है कि I will be attempting all the 17 questions of the exam. ठीक है, what you think you will be attending 17 questions of the exam, और इसके अंदर अगर 2 questions ऐसे आ जाते हैं जो कि थोड़े से ट्रिकी रहते हैं, ठीक है, एंड यू नीड नॉट रिमेंबर द कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट याद नहीं है, तब ये पोजीशन बिल्कुल आती है. यू टेक इट ऑन योर ईगो कि मुझसे कैसे नहीं हो रहा है. ठीक है, बस एग्ज़ाम के अंदर आपने ये चीज़ नहीं करनी है. जो क्वेश्चन सबसे पहले हो रहा है सिर्फ उसी को अटैम्प्ट करना है, और जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है सो प्लीज़ उसको भी लीव करो और आगे मूव करो. ठीक है, व्हेन यू हैव टाइम एट द लास्ट देन कम बैक टू दैट क्वेश्चन. क्या पता उस टाइम पे आप बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट लगा के उसको सॉल्व कर दो. ठीक है, सो टाइम वेस्ट करने से अच्छा है उस टाइम को यूटिलाइज करो इन अदर क्वेश्चन सकते हो रीजनिंग सेक्शन में. ठीक है, सो दीज आर सम माइन्यूट पॉइंट्स, की पॉइंट्स कि जो आपको एग्जाम अटैम्प्ट करते टाइम ध्यान रखने चाहिए. ठीक है, बिकॉज इन छोटी छोटी बातों से आपके एग्जाम के अंदर काफ़ी सारा फर्क आ जाता है. ठीक है, जहाँ पर आप 190 रेगुलर स्कोर कर रहे थे मॉक टेस्ट में, 200 स्कोर कर रहे थे मॉक टेस्ट में, बट अगर गलती से ये वाली चीज़ हो जाती है तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को डिग्रेड करके 160 के आसपास स्कोर करोगे फिर एग्जाम में. बिकॉज आप एटलीस्ट 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन का टाइम तो सिर्फ एक क्वेश्चन में वेस्ट कर रहे हो विच इज इक्वल टू 20 मिनट्स. ठीक है, सो दिस clearly shows the picture of some of you who just take the questions on your ego कि मुझसे कैसे सॉल्व नहीं हो रहा है. सो वो चीज़ आपने नहीं करनी है. ठीक है, now the next thing is कि what you need to do to ensure कि टाइम मैनेजमेंट जो है आपका बहुत सही चल रहा है. सो उसके लिए देखो सबसे पहला मेरा सजेशन है टेक 1 FCAT मॉक टेस्ट ऑन अ डेली बेसिस. सी टुडे इज संडे एंड 27 सितंबर है आज. ठीक है, और एग्ज़ाम है 3 अक्टूबर से स्टार्ट, सैटरडे से. ठीक है, सो इफ़ यू इंक्लूड 1 डे एज टुडे इटसेल्फ देन यू हैव एट लास्ट 6 days. सो व्हाट आई सजेस्ट you give at least 4 mock test दो. ठीक है, और ये कब देने हैं? You need to give this mock test in the same time which is scheduled on your admit card. Suppose if your admit card is showing your time is at 9 AM. ठीक है, जो जिन स्टूडेंट्स मॉर्निंग शिफ्ट में उनका रिपोर्टिंग टाइम 7:30 होता है आई थिंक, तो 9 AM के आसपास आपका एग्ज़ाम शुरू होने वाला है. सो यू ऑल्सो गिव द एग्ज़ाम मॉक टेस्ट इन द सेम टाइम विंडो 9 AM से 11 AM तक for the students who are giving exam in the morning shift, and for the students who are giving the exam in the evening shift, जो शिफ्ट में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए सजेशन क्या है, यू नीड टू गिव द एग्ज़ाम फ्रॉम 2:30 to 4:30. ठीक है, 2:30 से 4:30 दे सकते हो एग्ज़ाम, और यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 1:30 to 3:30. बिकॉज इफ एवरीथिंग गोज वेल तो आपका एग्ज़ाम सेंटर में इन दोनों में से किसी एक टाइम स्लॉट के अंदर एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है FCAT का 2 hours वाला. सो अभी से आपने क्या करना है, 4 मॉक टेस्ट देने हैं लास्ट 6 days सेम टाइम पे देने हैं. ठीक है, फॉर मॉर्निंग स्टूडेंट्स दिस इज द टाइम, फॉर इवनिंग शिफ्ट स्टूडेंट्स दीज आर द टाइमिंग्स. ठीक है, इनमें से कोई भी एक टाइम में आप एग्ज़ाम दो. ठीक है, एंड इन 4 मॉक टेस्ट के अंदर आपका जो रिजल्ट आने वाला है, द स्कोर्स विच विल यू रिसीव इन दिस लास्ट 4 मॉक टेस्ट, उनका जो एवरेज रहेगा दैट एवरेज विल बी योर certainly be your final FCAT score. ठीक है, समझ में आया कि इन 4 मॉक टेस्ट में जो आपका स्कोर रहने वाला है that will be equivalent to the average, that will be equivalent to the final score of your FCAT mock exam. Okay, so this is the thing which will certainly help you to know your knowledge gaps, आपकी weaknesses. और अभी 1 week है, ठीक है, टाइम है आपके पास, so you can easily be working on your knowledge gaps as well. अब इसको थोड़ा सा मैं elaborate करता हूँ कि how you need to cover these things. So देखो, अगर आपने अगर आज एक mock test दिया, suppose you give a mock test today and you score 160. ठीक है, if you score at least 160 marks, so what is the positive side in this and what is the negative side in this? Now the positive side is कि आपका टारगेट था कि मैंने एटलीस्ट 160 अटैम्प्ट्स करने, 160 मार्क्स लेके आने, वो कवर हो चुके हैं.
नाउ व्हाट वाज द वीकनेस? वीकनेस ये है कि आपको कई कॉन्सेप्ट्स ऐसे थे जो पहले आते थे, बट इस क्वेश्चन में वो क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाए, इस मॉक टेस्ट के अंदर वो क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट नहीं किए, ठीक है। सो अब आप क्या करोगे? यू विल सर्टेनली कवर दिस कॉन्सेप्ट्स ऑन द सेम डे, ठीक है। आपने आज मॉक टेस्ट दिया तो आप आज आज ही इनको कवर करोगे, यू विल ट्राई टू कवर इन टुडेज सेशन ओनली। नाउ व्हेन यू विल गिव द मॉक टेस्ट टुमारो, you will score certainly above 160. If you score only 161 also, then it's also a good achievement, ठीक है। डोंट गेट डीमोटिवेट कि मैंने कल इतना ज़्यादा मेहनत करी, अभी फिर सिर्फ एक ही मार्क्स का इम्प्रूवमेंट हुआ है, ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। इवन द इम्प्रूवमेंट ऑफ 1 मार्क्स इज ऑल्सो अ बेनिफिट, बिकॉज व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 1 मार्क्स? इट इज़ कि अगर आपका कट ऑफ स्कोर 152 है और आप 153 पे एग्जाम में स्कोर करोगे ना, यू विल डेफिनेटली सी कि व्हाट वाज द बेनिफिट ऑफ दिस 1 एक्स्ट्रा मार्क, ठीक है। तो ये बेनिफिट आएगा। अगर आप ऐसे 4 मॉक टेस्ट देते हो, then in 4 days you will definitely, in this 4 days of 4 mock test, you will definitely be recovering on your all the knowledge gaps. जो आपके नॉलेज गैप्स है वो सब आपके ठीक हो जाएंगे, ठीक है, इम्प्रूव हो जाएंगे, और आप बहुत अच्छी पोजीशन में स्टैंड करोगे लास्ट में, ठीक है। आई होप दिस माइट हैव प्रेजेंटेड यू अ क्लियर पिक्चर दैट how you need to begin in this last 6 days of exam and how you need to strategize yourself. Now see the next thing, attempt the easy questions first. ये चीज़ मैंने पहले ही बताई आपको, और डेली जब मैं अकेडमी पर क्लासेस लेता हूँ, जब भी मैं आपको ये चीज़ रेफर करता हूँ, फर्स्ट वेदर इट इज़ ऑफ रीजनिंग और मैथ और इंग्लिश और जीके, ठीक है, जिसमें भी आपको इजी क्वेश्चन दिखते हैं सबसे पहले वही अटैम्प्ट करो, ठीक है। देखो मैथ्स में अगर मैं बात करूँ, मैथ्स में आपके पास एटलीस्ट 6 to 9 क्वेश्चन हैं, ईजी लेवल साइड में होते हैं, ठीक है। दिस 6 to 9 ये उन स्टूडेंट्स के लिए रेंज है जो कि 10th 11th के बाद जिन्होंने मैथ्स नहीं पढ़ा है, ठीक है। दिस रेंज इज स्पेसिफिकली फॉर दो स्टूडेंट्स। इन रीजनिंग ईजी क्वेश्चन रेंज इज अराउंड 15, जो कि आप डायरेक्टली वन शॉट में निकाल सकते हो। इंग्लिश के अंदर ईजी अटैम्प्ट इज एटलीस्ट 8, और जीके के अंदर इफ़ यू हैव सर्टेनली डन द बेस्ट ऑफ द इंडियन जीके लाइक स्टेटिक ऑफ स्टेट ऑफ ज्योग्राफी, स्टेटिक जीके इंक्लूडिंग ज्योग्राफी, इन्वेंशंस, बुक्स एंड ऑथर्स, फेमस प्लेसेस ऑफ इंडिया, इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन स्पोर्ट्स, इंडिया इन ओलंपिक्स, ये सब चीज़ें अगर आपने की हुई हैं, then you will easily attempt 8 questions in GK. So what is the total marks? 15, 24, 32 and 40. So 40 into 3 is 120. So 120 marks देखो आपके पास easily available हैं, 120 marks are easily available to you. So why not just attempting the easy questions first and leaving the time for the rest of the questions? 40 questions थे, ठीक है, easy भी है ना, तो आप मैक्सिमम 1 आवर लोगे इसके अंदर, तो जो रिमेनिंग 1 आवर है, कांट यू स्कोर ओनली 60 मार्क्स इन लास्ट 1 आवर? 1 घंटे के अंदर आपने सिर्फ 20 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा अटैम्प्ट करने हैं विद जस्ट लिटिल बिट ऑफ लॉजिकल थिंकिंग एंड योर कॉन्सेप्चुअल पावर। सिर्फ वही हेल्प करेगा आपको टू गो फ्रॉम दिस ईजी 120 टू मीडिएट 180। ओनली दिस थिंग विल हेल्प यू। आई होप दिस माइट हैव क्लियर्ड समथिंग मोर पिक्चर कि आपने एग्जाम के अंदर लास्ट 1 वीक के अंदर कैसे अपने आप को स्ट्रेटेजाइज करना है, ठीक है। नाउ सी द नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट इज it's the advice what which I need to share. It's advisable not to get hooked to one question. जैसे कि मैंने आपको बताया, एक क्वेश्चन के पीछे नहीं रहना है, ठीक है, नहीं हो रहा है आगे मूव करो। वी नो इट कैन बी फ्रस्ट्रेटिंग व्हेन वी आर नॉट एबल टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। देखो ये वी आर ह्यूमंस, और ये ह्यूमंस का सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर हमसे कोई चीज़ नहीं हो रही होती है, व्हाट वी थिंक कि हमसे क्यों नहीं हो रहा है, ये हमसे हो रहा, हम कर सकते हैं, तो उसी के पीछे हम बहुत ज़्यादा टाइम खराब कर देते हैं। तो वो चीज़ नहीं करनी है, ठीक है, वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है आपने एग्ज़ाम में, ठीक है। सो इस चीज़ को आपने क्या करना है, कंट्रोल करके रखना है। यू नीड टू कंट्रोल दिस फीलिंग कि आई विल डेफिनेटली डू दिस, ये फीलिंग आपके मन में नहीं आनी चाहिए अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसा भी आपने अगर 1 मिनट लगाया, कुछ भी दिमाग में नहीं आ रहा है, लीव इट एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज़ द बेस्ट थिंग, और हर कोई आपको ये सजेशन ज़रूर देगा कि जस्ट डोंट गेट स्टिक टू द वन एग्जाम।
ठीक है, whether it is for FCAT or any other CBT computer based test, you need to be following these strategies only here to control you from scoring 100% accuracy. तो अगर नहीं आ रहे हैं वो क्वेश्चन छोड़ दो, leave them. ठीक है. Next thing is the one who practices more. Now this is the most important thing. The one who practices more will be less surprised in the actual FCAT exam. Now this is the major point which I am trying to say. जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो, जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट देते हो, the more you practice previous year question papers. Now what is the benefit? You think कि अब आपको पता लग जाता है कि एग्ज़ाम जो है इस पैटर्न के अराउंड आने वाला है और इस टॉपिक में से ऐसे क्वेश्चन आएंगे. सो यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द सरप्राइजेस. इन द पॉजिटिव साइड यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द सरप्राइजेस, बट अनलेस एग्ज़ाम आपका ज़्यादा मुश्किल तो नहीं आएगा. ठीक है, उस केस में सरप्राइज मिल सकते हैं, बट इफ़ यू हैव प्रैक्टिस्ड ऑन द पॉजिटिव साइड तो आपको सरप्राइजेस मिलने का चांस बहुत कम है. ठीक है, आपको मेन चीज़ क्या मिलेगी वहाँ पर? यू विल फील द कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस वो ऐसा रहेगा when you started solving the easy questions first, then that confidence will be on the higher level. ठीक है, और वही रिक्वायर्ड है आपको एग्जाम देने के लिए. ठीक है. Now this picture, what is the importance of this picture here? See students, when we were used to be the students in class first and second, teachers used to tell us कि write this lines 10 times in a notebook. एक लाइन को 10 टाइम्स लिखते थे. क्या बेनिफिट होता था उसका? ठीक है, वी जस्ट यूज्ड टू राइट दिस वन लाइन 10 टाइम्स बिकॉज इट हेल्प, इट मेड अस प्रैक्टिस कि हमने जो है एग्ज़ाम के अंदर कैसे पैराग्राफ लिखना है. दिस वॉज द मेन पर्पज ऑफ दिस एक्सरसाइज. सो वही आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की इंपॉर्टेंस है आपके एफटेट के एग्ज़ाम के अंदर. ठीक है, और किसी को भी अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए, अवेलेबल नहीं है अगर किसी के पास, तो मैं अभी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पर आप अपने डाउट्स पोस्ट भी कर सकते हो. ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो हैं, बुक्स की PDF से अवेलेबल हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको सोर्सेज अवेलेबल हैं, इनफ मटीरियल है आपकी प्रैक्टिस के लिए. ठीक है, चलो अभी आके मूव करते हैं फिर. अभी नाउ द नेक्स्ट टिप्स टू फॉलो इज speed, maths and formula knowledge. Now this picture definitely depicts the positions of some of you कि थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, मैथ्स से लगता है. ठीक है, तो ये जो प्रॉपर जो अभी मैं बताने वाला हूँ ये सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जिनका मैथ्स काफ़ी वीक है या फिर जो मैथ्स से डरते हैं. ठीक है, देखो जो मैथ्स का लेवल है FCAT के अंदर, इफ़ आई स्पीक ऑनेस्टली about the level of the FCAT, about the level of the maths in FCAT, then you will definitely see 9 questions directly. 9 से 10 questions आपको directly मिल जाएंगे which are of the easier side and direct formula based. easier formula based. ठीक है, सिर्फ formulas पता होने चाहिए, आप आसानी से 9 से 10 questions attempt कर लोगे. ठीक है, और यहाँ पर आपकी एक्यूरेसी क्या रहने वाली है? 100%. So it means you will score 30 marks. ठीक है, बट इफ़ आई टेल अबाउट द स्टूडेंट्स हु आर रियली वेरी गुड, उनके लिए भाई ये है कि आपको देखो अगर 17 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आपका एक ही मोटिव होना चाहिए दैट आई विल स्कोर 51. इफ़ 16 क्वेश्चन कम देन योर मोटिव शुड बी आई विल स्कोर 48. ठीक है, ये सिर्फ उन्हीं के लिए द स्टूडेंट्स हु थिंक कि मेरा मैथ्स बहुत अच्छा है और मैं इतना अटेम्प्ट कर सकता हूँ. ठीक है, सो ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए. ठीक है, तो देखो बेसिक एफर्ट्स आपने कहाँ पर लगाने हैं? सिर्फ फॉर्मूलाज याद करने में और उनका कैसे अपनी एप्लीकेशंस हैं उन फॉर्मूलेज की. ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको पता है एलिगेशन रूल है. एलिगेशन रूल जो है हर अरिथमेटिक के टॉपिक में यूज़ है उसका. ठीक है, सो ये है इस लाइन का मतलब कि आपको पता होना चाहिए कौन सा फॉर्मूला हमने कहाँ पर कैसे यूज़ करना है. ठीक है, अब इसके बाद अभी लास्ट 1 वीक में आप प्रैक्टिस करोगे तो उसमें क्या करना है, हर चैप्टर आप रिवाइज भी करोगे. ठीक है, रिवीजन इज़ मस्ट. सो रिवाइज करोगे ना, तब एक जो जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं उनको नोट कर लो. नोट इट इन योर नोटबुक और या फिर अपने मतलब स्टिकी नोट्स प्रिपेयर कर लो ताकि आपको बेनिफिट हो रिवाइज एट द टाइम भी, और जब लास्ट मिनट रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो मॉक टेस्ट के लिए तब भी. ठीक है, तो ये बेनिफिट रहेगा अगर आप इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है उनको नोट कर लेते हो. नेक्स्ट थिंग इज़ जो मैं बता चुका हूँ आपको कि मैथ सेक्शन जो है फॉर सम स्टूडेंट्स इट इज़ कॉम्प्लेक्स, फॉर सम स्टूडेंट्स इट इज़ ईजियर.
ठीक है। और जिनके लिए ईजी होता है ना, तो उनको भी 100% एक्यूरेसी लाने से रोकने के लिए एक क्वेश्चन हमेशा ही कॉम्प्लेक्स और हाई ऑर्डर मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स का होता है, ठीक है। हमेशा ही कॉम्प्लेक्स हाई ऑर्डर मैथमेटिकल प्रॉब्लम, यहाँ से मेरा मतलब है कि आपका जो क्वेश्चन है वो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ से मेरा मतलब है कि आपका जो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से नहीं हो रहा, ठीक है। दिस डिपिक्ट्स की जो क्वेश्चन है डैट माइट बी फ्रॉम एवरेज, बट कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन जो आपकी जो क्वेश्चन के अंदर जो रिक्वायरमेंट है डैट माइट बी समथिंग डिफरेंट, ठीक है। इफ द क्वेश्चन इज फ्रॉम सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, तो वहाँ से कुछ हाई ऑर्डर क्वेश्चन आ सकता है। सो मेरा मतलब ये था यहाँ पर कहने का कि आपको उस क्वेश्चन से डरना नहीं है, नहीं आता है लीव इट एट दैट टाइम। ओके, समझ में आया सभी को? चलो अच्छी बात है। अभी गाइस देखो, यहाँ तक जो अभी तक हमने प्रिपेयर किया है, आई होप कि सभी को पता चल गया होगा कि अब अभी आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो, है ना, और कैसे आपने जो है आगे मूव करना है। नाउ दीज वर सम टिप्स एंड द प्रीवियसली वी स्टडीड अबाउट द कट ऑफ्स, तो वहाँ से भी आपको जो है कॉन्फिडेंस फील आया होगा कि हाँ मैं एग्ज़ाम क्लियर कर सकता हूँ। नाउ नेक्स्ट थिंग इज build a section wise strategy. This is the most important thing. सेक्शन वाइज स्ट्रेटजी होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एफकेट एग्ज़ाम की आप लिमिटेशन भी कह सकते हो इसको, या फिर स्ट्रेंथ भी कह सकते हो ना। लिमिटेशन कैसे कि आपको ये नहीं पता चलेगा कि मैंने मैथ्स से सेक्शन में कितना टाइम लगा दिया है, मैंने रीजनिंग में कितना टाइम लगा दिया है, ठीक है, या फिर मैंने जो है इंग्लिश में कितना टाइम लगा दिया है। बिकॉज ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में यहाँ पर एक स्टॉप वॉच लगी हुई होगी, टाइमर लगा हुआ होगा यहाँ पर, वो चल रहा होगा ऐसे 120 मिनट्स उस पर लिखा होगा, फिर वो स्टार्ट करेगा, ठीक है। सो ये आपको अपने हिसाब से जो है सेक्शन वाइज स्ट्रेटजी सेट करनी है कि आपने मैथ्स के अंदर 40 मिनट्स अलॉट करने हैं, या रीजनिंग के अंदर आपने 50 मिनट्स अलॉट करने हैं, इंग्लिश में आपने 20 मिनट्स अलॉट करने हैं। दिस शुड बी योर स्ट्रेटजी, ठीक है। दिस इज़ द पर्सनल टू एवरी वन, आई कैन नॉट मेक इट एंड I cannot help you to force that strategy on yourself, ठीक है। It's your own। अब ये maintain कब होएगी? This will maintain only when you will give 4 mock tests in these last 6 days on the same time schedule। 4 mock test देने सेम टाइम पे, जो आपका एक्चुअल एग्जाम का टाइम है। टाइम मैं पहले आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, ठीक है। और जब आपको बेनिफिट क्या होगा, जब आपके पास सेक्शन वाइज स्ट्रेटजी आ जाएगी, 4 मॉक्स कंप्लीट करने के बाद जब आपके पास सेक्शन वाइज स्ट्रेटजी आ जाएगी, तब क्या रहेगा, यू विल ऑलवेज बी ऑन द स्ट्रॉन्गर साइड एंड इट विल डेफिनेटली बूस्ट योर मोरल ड्यूरिंग द एग्जाम, ठीक है। अभी बूस्ट कैसे होगा, सपोज कि आपने टारगेट किया था कि मैं 35 मिनट्स में मैथ्स का एग्ज़ाम करूँगा, 35 मिनट्स में आई विल अटैम्प्ट मैथ्स, बट आपने एक्चुअल एग्जाम में 30 मिनट्स में अटैम्प्ट कर दिया, तो आपने 5 मिनट सेव किए, तो इससे क्या होएगा, इट विल डेफिनेटली बूस्ट योर कॉन्फिडेंस कि हाँ मैं अब और जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं रीजनिंग में मैं उससे ज़्यादा टाइम अलॉट कर सकता हूँ, या आई विल अलॉट मोर टाइम इन इंग्लिश, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको हेल्प करने वाली हैं पूरे एग्जाम कंडीशंस में, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एनालिसिस। द मॉक टेस्ट which you will give in this last 6 days, that is at least 4 मॉक टेस्ट देते हो, ठीक है। तो हर मॉक टेस्ट के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा पोर्शन ज़रूर रहेगा जहाँ पर आपके नॉलेज गैप्स हैं, नॉलेज गैप्स। तो नॉलेज गैप्स को कवर करना ही आपका एनालिसिस कहलाता है, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ एनालिसिस ऑफ मॉक टेस्ट। सेकेंड एनालिसिस क्या होता है, एनालिसिस का दूसरा जो आपका बेनिफिट है वो क्या मिलेगा, इट विल हेल्प यू टू परफॉर्म एंड मेक अ सेक्शन वाइज स्ट्रेटेजी। एनालिसिस का मेन बेनिफिट यही है कि ये आपको जो है एक सेक्शन वाइज स्ट्रेटेजी प्रिपेयर करने में हेल्प करेगा, ठीक है। सो आपने करना क्या है, ये तो मैंने बता ही दिया। इट विल हेल्प यू आइडेंटिफाई द वीक एरियाज, और जो वीक एरियाज हैं उनको इम्प्रूव करना है, ठीक है। आप इम्प्रूव करोगे, कंसिस्टेंट रहोगे अपने एफर्ट साथ, अपने जो है पेशेंस हार्डवर्क के साथ अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो तो आप बहुत ईजिली जो है एग्ज़ाम को क्लियर कर दोगे, ठीक है। एंड दिस इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल ऑफ यू कि हमने लास्ट में बस एग्ज़ाम क्लियर करवाना है, ठीक है। सो गाइस ये देखो, ये छोटी छोटी बातें होती हैं, ये अगर आप इनको बहुत अच्छे से कंसीडर करते हो तो आप इजीली जो है विदाउट एनी प्रॉब्लम एग्ज़ाम क्लियर कर जाते हो, ठीक है।
दिस द नेक्स्ट थिंग इज बी क्लियर विद द कॉन्सेप्ट्स। देखो अगर आपके कॉन्सेप्ट सही हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स इन द सेंस कि आपको रीजनिंग में पता है कि व्हेन यू डू द क्वेश्चंस ऑफ डॉट सिचुएशन एंड व्हेन इन मैथमेटिक्स यू डू द क्वेश्चंस ऑफ परसेंटेज, ठीक है, तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे बिल्कुल अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट्स पता हैं, ठीक है, तो सिर्फ आप जब आप क्वेश्चन रीड करते हो उसी टाइम आपके माइंड में फ्रेमवर्क होना शुरू हो जाता है कि सॉल्यूशन ऐसे होने वाला है। और ये कैपेबिलिटी तब आती है, दिस इज ओनली व्हेन यू आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स का मेन यूज कहाँ पर आने वाला है? इन न्यूमेरिकल एबिलिटी सेक्शन, इन इंग्लिश। ये दो सेक्शंस ऐसे इंपॉर्टेंट है जहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट्स हैं जो बहुत हेल्प करने वाले हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत फास्ट है, मतलब प्रोसेसिंग पावर जो है बहुत फास्ट है, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स आपको सारे याद हैं, तो आप इजीली जो है क्लियर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है उसमें। बस क्या करना है, रेगुलर उसका रिविजन चाहिए। द मोर यू रिवाइज द मोर यू आर क्लोजर टू क्लियर द एग्जाम, ठीक है। दिस is the main trap where certain of you might get trapped into. This is the thing of negative marking, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग देखो भाई बहुत खतरनाक होती है। यहाँ पर आपका +3 करेक्ट आंसर के लिए -1 है फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, ठीक है। सो व्हाट इट शोज कि इफ़ यू अटेम्प्ट 50 क्वेश्चंस, ठीक है, और आपके उसमें से अगर 5 गलत हो जाते हैं, सो यू विल बी एंडिंग इन स्कोरिंग हाउ मेनी मार्क्स? यू विल बी एंडिंग इन स्कोरिंग 130 मार्क्स, ठीक है। तो कहाँ 150 आने वाले थे और कहाँ सिर्फ 5 क्वेश्चन गलत होने के कारण 130 पे पहुँच गए हो, ठीक है। तो जब ये इतने मार्क्स डाउन हो जाते हैं ना, और जब कट ऑफ आप देखते हो, कट ऑफ थी 145, देन इट हिट्स यू कि मैंने क्वेश्चन अटैम्प्ट क्यों किए, ठीक है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपने क्या करना है, प्लीज़ डोंट अटेम्प्ट एनी ऑफ द क्वेश्चंस इन विच यू आर नॉट श्योर। गैस वर्क बिल्कुल भी नहीं करना है आपने एग्जाम में, ठीक है। द लास्ट बोनस टिप फ्रॉम माई साइड इज कि डू नॉट फॉरगेट टू गिव योर सेल्फ इनफ टाइम टू रिलैक्स इन बिटवीन योर प्रिपरेशन। ऐसा नहीं है कि सुबह शाम तक इसके ऊपर लगे हुए हो, इतना मुश्किल एग्जाम नहीं है ये, ठीक है। तो जैसे कि मतलब अपने आप को टाइम देते रहो, गिव टाइम फॉर योर सेल्फ विच विल हेल्प यू एनर्जाइज मोर, ठीक है। थोड़ा सा जो है आप कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने में हेल्प करता है, इन विच विल ऑल्सो हेल्प यू गेन मेंटल स्ट्रेंथ एज वेल, ठीक है। तो बीच में माइन्यूट गैप्स लेते रहो, इट विल हेल्प यू प्रिपेयर मोर एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, ठीक है। और लास्ट में क्या होना है कि इफ़ यू फॉलो दिस ऑल द स्टेप्स, ऑल द टिप्स, then you are definitely going to excel in the FTET exam, ठीक है। Now what we learned in today's session, what are the major takeaways or major learning which you can take from this session and apply in your final exam, and in this last one week strategy कि जो आप पढ़ने वाले हो तो उसके अंदर आपने कैसे जो है सब कुछ अटैम्प्ट करना है, कैसे आपका स्ट्रेटेजी होना चाहिए। नाउ सी दिस वेन डायग्राम, 3 सेट का वेन डायग्राम है, ठीक है। नाउ इफ़ यू नो द कॉन्सेप्चुअल थिंग्स, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स पता है हर सब्जेक्ट के, ठीक है, कंबाइंड विद द स्ट्रेटेजी, आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी है, ठीक है। एंड थर्ड थिंग इज कि अगर आपके जो आपने नॉलेज